Good morning, friends. Friends, we have started with the topic, the chapter number one, form and the purpose of the business, right? And we have learned, friends, the first topic is economic activity we have learned. And then we have learned non-economic activity, right? And then we have started with the topic define types of economic activities. In that, we have learned the concept of business, its characteristics, its objectives, and laws. Friends, today we are going to learn the concept of the business risk. Now, what is the causes of business risk? We know risk is there. Without risk, we cannot sustain anything. Even in the life also, without risk, we cannot sustain anything. Right? So, in business also, risk is there. And profit is always the reward of risk only. Profit is the reward of risk only. Right? So, friends, we can start. What they want to say, there is an uncertainty of profit or risk of loss in the business. Clearly, they says that there is always an uncertainty of profit. Before this topic, we have learned the topic profit, risk, and uncertainty. Uncertainty means what? Which is not certain, right? Which is not known by us. What will happen in the future? That is known as uncertain. So what they want to say, there is an uncertainty of profit or risk in the business. The uncertain events of the future affects the profit. If the situation is good, if the market is good, economic condition of the people is good, obviously the business will increase. But if the opposite will happen, then the business will not increase and the profit will result into negative profit, that is loss, right? So thus it can be said that profit is a reward against the business risk. So in one statement they makes very clear to you, profit is a reward against the business risk. So there are two types of risk in the business. Clearly they say there are two types of risk in the business, natural risk and man-made risk. Friends, which risk? Natural risk and man-made risk. So first let's see natural risk. Ready? Yes. Natural risks, like what are the natural risks? Earthquake, flood, etc. hinders the growth of the business, hinders the growth of business and destroy or damages the asset of the business. That means the business has no control over natural risk. Clear, friends? What they want to say? Business risk, what they want to say? There is always an uncertainty of profit or risk in the business. The uncertain events depends upon the future of the which affects the profit. Thus we can say that what we can say, profit is a reward against the business risk. There are two types of risk in the business, natural risk as well as the man-made risk. Natural risk, what they can say, natural risk like earthquake is there, flood is there, which always hinders the growth of business and destroy or damages the asset of the business. That means the business has no control over natural risk. Now comes the friends man-made risk. Now what is man-made risk? Man-made risk hinders the development of business. Man-made risk hinders the development of business, and as a result, business has to suffer the loss. Yes, man-made risk मतलब क्या होता है? Which is created by the man, right? Which is created by the individual. Like we can say strike of the employees, accident of an employee, change in the taste of a people, change in the preference of the people, increase in the competition. These are all, friends, what? Man-made risk. So let's see. Man-made risk hinders the development of a business, and as a result, business has to suffer the loss. These risks are, which are the risks? Strike of employees, change in technology, change in taste, and demand of customers. Political instability, risk of competition. So in exam, they can ask the question to you, give the four examples of natural risk, give four examples of man-made risk.
I think it's very clear to you, right? Now comes the concept causes of business risk. So let's see that, friends. What are the causes of business risk? Ready? So we can start the topic. Causes of business risk means changes in technology. We can see now today in the modern world, the technology is changing at a moment of time. Technology is changing at a moment of time. You just see before 4 to 5 months, you are teaching in the whole physical classroom. And now you can see that the virtual method of teaching. What does it mean? It's the changes in technology. Everywhere you can see the changes in technology. So let's see. Changes are necessary in production method. Changes are necessary in production method due to invention in the technology. New technology is to be adopted to produce high quality goods. That is also okay. New machine have to be installed for the replacement of old machine. If you get the example for the manufacturing of big products like cars or any other equipment, robots are used. You can see in the machinery also, lot of automation is there. We know there are two types of labor intensive. One is man-made labor intensive and second is the machine-based intensive. Today all prefer the machine-based intensive because no lethargy, right? No time limit, no strike, nothing. It can be produced on a daily basis, right now. So what, friends, the first is changes in technology. So what they want to say? Changes are necessary in production method due to invention in technology. New technology is to be adopted. We have to accept the new technology in order to produce the high quality goods. New machinery have to be installed. What they want to say, friends? New machinery have to be installed for the replacement of old machinery. That means old machinery is to be replaced and the new machinery is to be installed. Okay. Then comes threat of substitute products. Threat of substitute products means what? There is always a substitute of one of the other product. If you go to purchase one notebook and that notebook cost around 25 rupees or 30 rupees, you always have a substitute of 20 or 22 rupees. So what does it mean? That is a threat. थ्रेट का मतलब एक तरह का कंपटीशन आ जाना, थ्रेट बोलते हैं. The customer may turn to substitute product due to change in technology. Example, ball pens in the place of fountain pen. पहले हम ये यूज करते थे ना फाउंटेन पेन. आप लोग तो इस्तेमाल नहीं करते थे, हम अपने जमाने में यूज करते थे फाउंटेन पेन. अब now it has been changed to ball pen. Vessels of steel in place of copper and brass. Copper and brass अब बहुत महंगा हो चुका है. So people are using now vessels of steel for daily purpose. Television in the place of radio. पहले के लोग रेडियो सुनते थे. That is the only way of entertainment. But now it has been changed. अब क्या हो गया? Television, computers, mobile phones, है ना? Because of technology. So what they want to say? So हमने देखे, अभी क्या देखे आज हमने देखे causes of business risk. और उसके अंदर देखा हमने profit is the reward of the risk that we take. है ना? हमने देखा उसमें पहला पॉइंट कौन सा देखा हमने? नेचुरल रिस्क, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. मैन मेड रिस्क, जो खुद इंसानी क्रिएट करता है, इंडिविजुअल. देन कम्स चेंजेस कॉजेस ऑफ बिजनेस. क्या क्या बिजनेस रिस्क के कारण, क्या क्या देखा हमने? चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स आ रहे हैं तो बदलना पड़ेगा. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेट रखता है, डर लगता है. Competition. Now what is competition? Competition increases the business risk which directly affects the business profit. तो क्या लिखा है? Competition मतलब एक मार्केट में अगर 5 दुकानें हैं और दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, ऐसे ही होता है. अगर कोई पर्टिकुलर देखो, आप एक वेजिटेबल वेंडर के पास जाओ तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे लोग खड़े होते हैं वेजिटेबल्स बेचने के लिए. तो कंपटीशन उस तरह का होता है. If you go to textile market, you can see that बहुत सारे दुकान वाले होते हैं जो
सामान बेचते हैं एक साथ। तो ये सब कहना क्या चाहते हैं, अगर कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पे असर करेगा। देखो, कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क, कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क which directly affects the business profit। क्लियर लिखा है, कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस प्रॉफिट। और क्या लिखा है, द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस्ड। सेल्स प्राइस, प्रॉफिट कब बढ़ाओगे आप, जब आपका सेल्स प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन कंपटीशन इस लेवल का है तो सेल्स प्राइस हम ज्यादा नहीं रख सकते, कम करना पड़ेगा। अगर कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस्ड and advertisement expense are to be incurred by business unit to maintain its position in the market and to face competition, thus profit get reduced। है कि नहीं? तो क्या लिखा है देखो, competition increases the business risk, competition increases the business risk which directly affects the business profit। The sales price of the product, the sales price of the product is to be reduced and advertisement expense are to be incurred, advertisement expense are to be incurred by the business unit to maintain its position in the market and to face competition, thus profit get reduced। So अभी तक हमने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, एक तो हमने देखा बिजनेस रिस्क, उसमें देखा हमने नेचुरल रिस्क, फिर हमने देखा मैन मेड रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या कॉजेज है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड लास्ट में हमने देखा कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन सी फ्रेंड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे ही हम अपना बिजनेस कहीं पे भी हम शुरू नहीं कर सकते। तो ये पहले लीगलाइज करना पड़ेगा सब कुछ हमें। तो देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉ रिगार्डिंग पोल्यूशन। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, राइट। एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे, यू नो इट। सो स्टार्ट करो फ्रेंड्स अच्छी तरीके से काम कर, वीडियोस को 2-3 बार देखो तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, साथ में पढ़ ही लो तो हो जाता है। चलो देखो, लीगलाइजेशन, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉ रिगार्डिंग पोल्यूशन। आजकल कितना स्ट्रिक्ट हो गया है कि भाई आप नदी में या फिर नाला में, वहां पे आप कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री का खराब पानी, वेस्ट वाटर आप नहीं डाल सकते। कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं, वर्कर को अच्छी सैलरी देनी है, इंडस्ट्री के सेफ्टी नॉर्म्स हैं, ये सब चीज हमें लीगलाइज करना पड़ता है। व्हाट दे वांट टू से, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉ, गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है कानून, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स द लॉ रिगार्डिंग किसके बारे में है फ्रेंड, पोल्यूशन के बारे में है, कस्टमर्स के बारे में है, वर्कर्स के बारे में है और इंडस्ट्री के बारे में। बट दिस लॉस कॉजेस रिस्क फॉर बिजनेस, ये कॉजेस से क्या होता है, बिजनेस में रिस्क होता है। एग्जांपल, क्या एग्जांपल, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट। मिनिमम वेजेस तो देना ही पड़ेगा, राइट। दे हिंडर द बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हिंडर करता है। प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो ये सब होगा, तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलो फ्रेंड्स, तो क्या पढ़ा हमने, लीगलाइजेशन। तो क्या लिखा है, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉ रिगार्डिंग किस किस के बारे में है, पोल्यूशन के बारे में है, कस्टमर्स के बारे में है, वर्कर्स के बारे में है, इंडस्ट्री के बारे में। बट दिस लॉ कॉजेस रिस्क फॉर बिजनेस। एग्जांपल, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट, and they hinder the business in decision making। सही है। फिफ्थ लिखा है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, ये चीज के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड।
अब जैसे कि बोल दे कि भाई कल लॉकडाउन है, तो हमारे सारे दुकान में, खासकर प्रोविजन स्टोर में भीड़ लग जाएगी, चलो सामान इकट्ठा करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड अचानक बढ़ जाना। लेकिन अब ये लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे शोरूम से, बहुत सारे ऐसे कपड़ों के दुकान है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल ही बिक नहीं रहा है, बिल्कुल ही बिक नहीं रहा है, क्योंकि वो चीज का डिमांड हम पोस्टपोन कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी चीज है अनसर्टिनिटी ऑफ डिमांड। तो क्या लिखा है, अनसर्टिनिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्रिएट्स द रिस्क फॉर द बिजनेस। कोई कोई चीज का हमेशा हमें जरूरत पड़ती है, और कोई कोई चीज हम की जरूरत नहीं हो तो भी काम चल जाता है। किसके ऊपर डिपेंड है, चेंजेस इन कस्टमर इनकम, उसके इनकम पे डिपेंडेंट है, उसके टेस्ट पे डिपेंडेंट है, उसके प्राइस पे डिपेंडेंट है प्रोडक्ट के, और इन्फ्लेशन का रेट क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर डिमांड विच अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो फ्रेंड्स क्या क्या अनसर्टेनिटी में क्या लिखा है, uncertainty of demand of the product creates the risk for the business. Changes in क्या क्या प्रॉब्लम होता है, changes in customer income, taste, product price, inflation, etc. create uncertainty for demand which affects the profit of business. Then comes physical risk. Physical risk मतलब जो हमारे सामने होता है, जो हमें पता नहीं होता लेकिन हमसे हो जाता है। डैमेज टू द एसेट, जो एसेट होता है अपना वो डैमेज हो जाना, जो मशीन है अपना खराब हो जाना, राइट। डैमेज टू द एसेट विच आर यूटिलाइज इन बिजनेस क्रिएट फिजिकल रिस्क। नॉन फंक्शनिंग ऑफ क्या क्या मशीनरी है, इक्विपमेंट से, डैमेज इन ट्रांजिट ऑफ गुड क्रिएट द फिजिकल रिस्क। तो चलो हमने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। चलो तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का डेफिनेशन है जो हमें पढ़ना है, क्या लिखा है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड अगेंस्ट द बिजनेस। सही बात है कि नहीं, राइट। बोलते हैं ना जो रिस्क उठाएगा उसी को ही प्रॉफिट होगा, राइट। कोई भी काम शुरू करोगे उसमें रिस्क तो होना ही है, और बिना रिस्क काम नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट इज अ रिवार्ड अगेंस्ट द बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क को फ्रेंड्स दो भाग में क्लासिफाई किया कौन से हैं, नेचुरल रिस्क और दूसरा है मैनमेड रिस्क। नेचुरल रिस्क क्या है, नेचुरल रिस्क में क्या क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, जो ग्रोथ ऑफ बिजनेस को कम कर देता है। मैनमेड रिस्क क्या है फ्रेंड्स, मैनमेड रिस्क ऐसे है जो क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, फायर लग जाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना, चेंजेस इन टेस्ट हो जाना, प्रेफरेंस बदल जाना लोगों का, उसे हम क्या कह देते हैं, मैनमेड रिस्क। अब लिखा है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस, चलो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंजेस जरूरी है लेकिन हमें न्यू मशीन्स लाने पड़ते हैं तो खर्चा तो होगा। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, हमेशा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारे सामने रहता है, तो उससे हमको एक थ्रेट रहता है कि चलो अब ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, इसलिए अपडेशन करना पड़ता है। अपडेशन, नए नए चीज मार्केट में लाने पड़ते हैं तब जाके वो सामान चलता है। तीसरा हमने पढ़ा फ्रेंड्स कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ा कि भाई कंपटीशन से हमारा सेल्स प्राइस हमको कम करना पड़ेगा, लेकिन सामने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, उससे भी असर होता है। फिर लीगलाइजेशन, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बना दिए हैं, पोल्यूशन के बारे में हो, कस्टमर्स के बारे में हो, वर्कर के बारे में हो, इंडस्ट्री के बारे में हो, अब उसके ऊपर ध्यान देके करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, कभी भी हम अनसर्टेन रहते हैं, क्योंकि कब डिमांड अपना बढ़ेगा कब डिमांड घटेगा पता नहीं, क्योंकि ये कब किस पे डिपेंड है, कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर है, कंज्यूमर के प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के ऊपर है, सिचुएशन के ऊपर है, इन्फ्लेशन के ऊपर। फिजिकल रिस्क, सामान एसेट खराब हो जाना, ट्रांजिट में नुकसान हो जाना, ये सब चीज भी रहता है। सो फ्रेंड्स होप कि इसका नोट आप कंप्लीट करोगे।
अब कल हम देखेंगे फ्रेंड्स प्रोफेशन किसे कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, आपको आइडिया है? थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रोफेशन मतलब वी कैन से ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना कोई पर्टिकुलर फील्ड में, और वो जो उसने जो नॉलेज अर्न किया है वो सोसाइटी को दे के फीस चार्ज करता है। जैसे कि डॉक्टर तो मेहनत करता है, चार्टेड अकाउंटेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, एमबीए कंप्लीट करता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, राइट, इंटर्नशिप बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद उसको उस चीज का क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर क्या करता है, उस एक्सपीरियंस को सोसाइटी को देता है, जो लोग उसके मदद मांगने आते हैं, और उस सोसाइटी को अपना जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो शेयर करता है और उनसे वो फीस चार्ज करता है। इस तरह से प्रोफेशन में काम चलता है। ठीक है, चलो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो प्रोफेशन का डेफिनेशन तो कंप्लीट कर ले इस पीरियड में। देखो, ये पर्सन विद स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन रेंडर सर्विस एंड इन रिटर्न फीस इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो क्या कह सकते हैं, प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज gained in any field, देखो मेरे वर्डिंग चेंज हो रहे, gained in any field and the benefit of that knowledge is given to the society, किसको देना होता है, सोसाइटी, and in turn fees is charged, फीस चार्ज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन। तो क्या है फ्रेंड प्रोफेशन, a profession with specialized knowledge, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एजुकेशन, रेंडर सर्विस एंड इन रिटर्न क्या लेते हैं, हम फीस लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन। ए प्रोफेशन हैज टू ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, ही हैज टू ओबे द एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट। एक एसोसिएशन बनता है, चार्टेड अकाउंटेंट के एसोसिएशन है, डॉक्टर्स के होते हैं, लॉयर के होते हैं, तो रूल्स फॉलो करने हैं, राइट। तो चलो, तो व्हाट वी कैन लर्न इन प्रोफेशन, ए प्रोफेशन इज अ specialized skill, knowledge and professional education render service and in return fees is charged। तो हम अलग तरीके से बोल सकते हैं, profession is a specialized knowledge gained in any field and the benefit of that knowledge is given to the society and in turn fees is charged। Example, doctors, lawyers, chartered accountant, etc. Okay, तो फ्रेंड्स वी आर स्टॉपिंग हियर, नेक्स्ट पीरियड में हम इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। तो होप आज का क्लास एकदम आपको सही लगा है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, बिजनेस रिस्क, नेचुरल मैनमेड रिस्क, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क के सारे पॉइंट और उसके डिटेल्स भी, और साथ में प्रोफेशनल का डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, a person has a specialized knowledge gained in any field, benefit of that knowledge given to the society and in turn fees is charged, is called a profession। Okay, so thank you, god bless you everyone, take care।